अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मौके में दाखिला के तमाम शोबेजात की कारकर्दगी और बजट अखराजात का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला राजू त्रिवेदी, डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी, डायरेक्टर जनरल पुलिस तेजदीप कौर मेनन, डायरेक्टर पुलिस एकेडमी संतोष मेहरा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रचाकुंडा पुलिस के कमिश्नर महेश भागवत और सहवराबाद के कमिश्नर CV सजनार और दूसरे शरीक थे। जद्दोजहद आज़ादी के दौरान हिंदुस्तान छोड़ दो नारा लगाने की 77वीं सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में आज एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। 77వ క్విట్ ఇండియా డే వేడుకలు వచ్చిన మిత్రులందరికీ పెద్దలందరికీ నమస్కారం। 1942లో ముంబైలో ఆ రోజు మహాత్మా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో బ్రిటిష్ వారికి క్విట్ ఇండియా అనే పిలుపునిచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పిలుపుతోనే 1947లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది। ఆ ఉద్యమంలో పదుల వేల సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలందరినీ సంవత్సరాల తరబడి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది। స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశ నిర్మాణానికి ఎంతో కృషి చేసింది। ఈరోజు ఈ సందర్భంగా ఒక్క విషయం మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి। భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడంలో నవభారత నిర్మాణానికి ఎంతో కృషి చేసిన నెహ్రూ గాంధీ కుటుంబాన్ని ప్రస్తుతం బీజేపీ ప్రభుత్వం వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని తగ్గించే విధంగా, చరిత్ర వక్రీకరించే విధంగా, చరిత్ర తిరిగి రాసే విధంగా ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం చేయడం ఇది చాలా శోచనీయం, బాధాకరం। సమాజం మొత్తం ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది। జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో 10 ఏళ్లకు పైగా జైల్లో ఉండి అన్ని విధాలుగా త్యాగాలు చేసి స్వాతంత్రం తర్వాత నవభారత నిర్మాణానికి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే భారతదేశం ఒక గొప్ప దేశం అని పేర్కోవడానికి కీలక క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారిని బీజేపీ ప్రభుత్వం, బీజేపీలో పెద్ద మనుషులు పార్లమెంట్లో బయట వారేదో తప్పు చేసినట్టుగా చేసే ప్రయత్నాన్ని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, సమాజం మొత్తం ఖండించాలని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాను। మొన్న జరిగిన పార్లమెంట్ సెషన్లో ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు కానీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు కానీ పేరు పెట్టి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి తప్పిదాల వల్లనే భారతదేశం కొన్ని తప్పులు జరిగినట్టుగా మాట్లాడడం, ఇది యావత్ భారతదేశంలో సమాజంలో అన్ని వర్గాలు ఖండించాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం। మిత్రులారా, ఈరోజు భారతదేశం ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొదటి 5 దేశాల్లో ఉందంటే ఆ రోజు నెహ్రూ గారు వేసిన పునాది, ఆ రోజు వేసిన బీజమే అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। మరి ఈ సందర్భంగా 20 తారీఖున 20 ఆగస్టుకి రాజీవ్ గాంధీ గారి 75వ జన్మదిన వేడుక యావత్ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఘనంగా చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాం। మరి నెహ్రూ గాంధీ కుటుంబం ఈ దేశకు చేసిన సేవలు, వారు చేసిన త్యాగాలు ఒక్కసారి తిరిగి మనం సమాజంలో అన్ని వర్గాలకి తీసుకుపోవాలి ఈ సందర్భంగా చెప్పి మనవి చేస్తూ ముగించుకుంటున్నాను। జై హింద్, జై కాంగ్రెస్। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बताया कि उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई पर वजारत दफा के हुक्काम से बातचीत की है। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी भी, जो पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं, इस इजलास में शरीक थे। उन्होंने बताया कि इजलास की सदारत ब्रिगेडियर अभिजीत चंदर ने की, जबकि इसमें
आंध्र और तेलंगाना सब एरिया के कमांडर्स भी शरीक थे। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली को आज सुबह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। याद रहे कि नासाजी सेहत की बिना पर अरुण जेटली को इस मर्तबा नरेंद्र मोदी की काबीना में शामिल भी नहीं किया गया था। मुल्क के 66वें कौमी फिल्म अवार्ड का आज ऐलान कर दिया गया। विकी कौशल की फिल्म उरी को कौमी अवार्ड से नवाजा गया है। आयुष्मान खुराना की अंधाधुन को बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन अदाकार का भी अवार्ड मिला है। ये अवार्ड हर साल अप्रैल में दिया करते इस अवार्ड का हर साल अप्रैल में ऐलान हुआ करता था और इसकी तकसीम मई में की जाती थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के पेश नज़र उन्हें मुलतवी कर दिया गया था। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज इन अवार्ड्स का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इलाके ज़बानों की फिल्मों के लिए भी अवार्ड दिए जा रहे हैं। फिल्म पद्मावत के प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह और अदाकारा कीर्ति सुरेश अवार्ड याफ्तागान में शामिल हैं। कीर्ति सुरेश ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका नाम भी अवार्ड याफ्तागान में शामिल कर दिया जाएगा। मुतनाज़ा फिल्म अदाकार एजाज खान को उर्दू फिल्म हामिद में बेहतरीन अदाकारी के लिए अवार्ड मिला है। मुगलाई खानों के शायकीन के लिए खुशखबरी है और वो ये है कि सिकंदराबाद की रॉयल रिव होटल में 2 रोज़ा कबाब एंड बिरयानी फेस्टिवल का आज से आगाज हो गया। होटल के मैनेजर अखिलेश कुमार ने बताया कि 10 अगस्त को फेस्टिवल का अख्ताम अमल में आएगा। फेस्टिवल के दौरान 5 किस्म की बिरयानियां और 6 किस्म के कबाब बफे में दस्तयाब रहेंगे। रचागुंडा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन शेयर मार्केट का कारोबार करने का दावा करते हुए लोगों से पैसे बटोरने वाली टोली के दरकान राहुल कुमार और सूर्या चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस भोंगीर नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 5 PCU, 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और अहम फाइल जब्त किए हैं। చిట్టిరెడ్డి అని ఒక అతను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ, ఇతను ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ రాచకొండ పోలీస్ వారికి. దీంతో ఇతను 1.8 lakh రూపీస్ ఒక నేషనల్ స్టాక్ రీసెర్చ్ ఆఫీస్ అని బెంగళూరులో ఉంటుంది వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. దీంతో వాళ్ళు నేషనల్ స్టాక్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు మీరు అమౌంట్ ఇచ్చినట్టయితే ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చేంత ఒక 28 ట్రేడింగ్ డేస్లో మీ అమౌంట్ 5 to 11 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేపిస్తాము 28 డేస్లో అని ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. సో దాంతో ఇతను మోసపోయి అరౌండ్ 1.81 lakhs వాళ్ళకి ఇది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదానికి లింక్స్ బేసికల్గా మనకి ఈ క్యాష్ ఫ్రీ అండ్ పేటిఎం వాళ్ళ లింక్స్ వాళ్ళు అతని మొబైల్కి వాట్సాప్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది. ఇతను ఆ లింక్స్తో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అవి నేషనల్ స్టాక్ రీసెర్చ్ ఆఫీస్ వాళ్ళ అకౌంట్స్లో డిపాజిట్ అవ్వడం జరిగింది. దీంతో మనకి కంప్లైంట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఈ లింక్స్ పట్టుకొని మనము ట్రాక్ చేసుకుంటామంటే వీళ్ళిద్దరు అక్యూజ్ని మన నేషనల్ స్టాక్ రీసెర్చ్ నుంచి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఒక రాహుల్ కుమార్ అండ్ అనదర్ సెకండ్ వన్ బండపల్లి అనంత సూర్య చైతన్య. సో ఈ రాహుల్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఈజ్ ఫ్రమ్ బీహార్. యాక్చువల్గా ఇతను బెంగళూరులో వీళ్ళు HSR లేఅవుట్ బండలగడ్డలో ఒక ఆఫీస్ పెట్టారు. చిన్నగా ఈ బండపల్లి అనంత సూర్య చైతన్య అనేది కూడా ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. ఇతనితో పాటు ఇంకొక 6 ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు. సో మొత్తం వచ్చేసి మనకి సూర్య చైతన్య, కోడి దీపక్, PR చంద్రశేఖర్,
అండ్ విజయ్ రమేష్ అండ్ నివేదిత్ నారాయణ్ వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసుకొని చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ బేసికల్గా ఎవరైతే డీమ్యాట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ థర్డ్ పార్టీ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు పర్చేస్ చేసి వాళ్ళకి రిపీటెడ్గా కాల్స్ మెయిల్స్ పెట్టి వాళ్ళని లూర్ చేసి ఎంటైజ్ చేసి ఇట్లా మీ అమౌంట్ మీరైతే ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారో ఇది 5 to 11 times 28 ట్రేడింగ్ డేస్లో అవి మల్టిప్లై చేస్తామని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఒక 70 lakhs అండ్ అబోవ్ చాలామంది అమాయకుల దగ్గర వీళ్ళు కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఐ మీన్ డిపాజిట్ చేయించుకుంటారు. సో వీళ్ళు దాదాపు ఒక 1.5 years నుంచి ఈ ఆఫీస్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ బెంగళూరులో ఓపెన్ చేసి చాలామంది అమాయకుల్ని వీళ్ళు అకౌంట్ ద్వారా మనీ డిపాజిట్ చేయించుకొని తర్వాత వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా వాళ్ళ మెయిల్స్ కానీ లేకపోతే కాల్స్ కానీ రెస్పాండ్ అవ్వకుండా చీట్ చేశారు. చాలామంది కంప్లైంట్ చేయలేదు. బట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు శ్రావణ్ చిట్టిరెడ్డి అనే వ్యక్తి ముందుకు వచ్చేసి ఈ కంప్లైంట్ చేయడం మా టీమ్ ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ పోలీస్ వారు శ్రీ విజయ్ కుమార్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ అండర్ ది గైడెన్స్ ఆఫ్ హరినాథ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పోలీస్ వీళ్ళు చాలా మంచి వర్క్ చేశారు. బెంగళూరు వాళ్ళిద్దరిని A1 and A2 రాహుల్ కుమార్ అండ్ సూర్య చైతన్యని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళతో పాటు ఒక 5 CPUs, ఒక మొబైల్, ఒక 4 mobiles, 1 laptop, 1 Wi-Fi router, 3 stamps ప్లస్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి డీమ్యాట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మామూలుగా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్లా వీళ్ళతో ఇంకా ఒక 4 members-ని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళంతా పరాజీ. వీళ్ళు వేరే స్టాక్ బ్రోకింగ్ వీళ్ళు ఉంటారు. ఐ మీన్ ఎగ్జాంపుల్ దాంతో ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంజల్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీతో కూడా మాకు ఐ మీన్ టైఅప్ ఉంది. ప్లస్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా మాకు లింక్స్ ఉన్నాయి, మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉద్దేశంతో వీళ్ళు అలా చాలామందికి ఇన్నోసెంట్స్కి చెప్పి అక్కడి నుంచి వీళ్ళ ద్వారా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు. పార్టీస్ నుంచి బ్యాంక్స్ ఆర్ సమ్ బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీస్, స్టాక్ బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీస్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు డేటా ఎవరో వీళ్ళకి అమ్మినట్టు ఉన్నారు. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళు డేటా ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేశారు అనేది కూడా వీళ్ళు ప్రోబ్ ఇంటున్నారు. వీళ్ళకి ప్రీవియస్గా క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు. వీళ్ళు దే ఆర్ ది ఫస్ట్ టైం చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఆల్సో ఇన్వెస్టిగేట్ ఇంటూ దాట్ వెదర్ దే ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అంతా కూడా బెంగళూరు నుంచి అండి. దే హ్యావ్ ఎన్ ఆఫీస్ ఇన్ బెంగళూరు. యాక్చువల్గా వీళ్ళకి HSR లేఅవుట్లో ఒక ఆఫీసు. సో అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वजीर मोहसिन रजा ने आज ये कहते हुए एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया कि मुसलमानों को ज़ाफ़रानी लिबास पहनना चाहिए क्योंकि ये चमक की अलामत है। उन्होंने बताया कि ज़ाफ़रानी कलर योगी आदित्यनाथ का नहीं बल्कि अल्लाह का तोहफा है। जिंदगी में एक बार हज की सादत हासिल करना हर मुसलमान की देरीना ख्वाहिश होती है और जारी साल तकरीबन 25 लाख मुसलमान पूरी दुनिया से इस फरीजे की अदायगी के लिए मक्के मुअज़्ज़मा पहुंच गए हैं। आज से मनासिक हज का आगाज हो चुका है। लाखों मुसलमान खैमों के शहर मीना के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं, जहां वो 5 दिन क़याम करेंगे। अजीजिया और दूसरे रिहायशी इलाकों में रहने वाले आज़मीन बसों और ट्रांसपोर्ट की हर दस्तियाब सहूलत के जरिए मक्के से 6 किलोमीटर दूर वाक़े मीना रवाना हो गए, जो वहां सारा दिन क़याम के बाद रात बसर करेंगे और रात देर गए अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। कल वकूफ़ अरफात होगा। ज़ोहर असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी और मगरिब से पहले आज़मीन मैदान अरफात को छोड़ देंगे और मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। वकूफ़ अरफात ही हज होता है और उस दिन हज का खुतबा भी दिया जाता है। मस्जिद निमरा सुबह से ही आज़मीन हज से पूर्ण होना शुरू हो जाती है। हुकूमत सऊदी अरब ने 2.5 मिलियन आज़मीन के लिए वसीतर और मौसर इंतजाम किए हैं। 1 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी अफराद को सियानती इंतजाम के लिए मुतयन किया गया है। 180 दवाखानों और मेडिकल सेंटर्स पर 32,000 से ज़ायद डॉक्टरों और तिबी अमला आज़मीन हज की टीकांदाजी और इलाज मुआलजे के काम के लिए मुतयन हैं, जबकि हर मुल्क के सिफारत खाने की तरफ से भी डिस्पेंसरियाँ कायम की गई हैं। सऊदी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक इस साल 18 लाख ऑनलाइन वीज़े जारी किए गए। इसका मकसद दरमियानी आदमियों को सिस्टम से हटाना है। हुकूमत सऊदी अरब ने एक हज ऐप भी बनाया है ताकि आज़मीन की शब रोज़ रहनुमाई की जा सके। विना में वाटर एंड फायर प्रूफ खेमे नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी हालत को टाला जा सके। इस साल हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं। इनमें से अक्सरियत हज कमेटी के जरिए जाने वालों की है। रुकन असम्बली गौसर मोहिउद्दीन ने आज
जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन मुशर्रफ फारूकी कैमरा कारमान असम्बली हल्के के कई डिवीजन्स का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बलकापुर नाला, शाहतम तालाब और कटोरा हाउस गोलकुंडा में साफ सफाई और तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बारिश से तबाह हो जाने वाली सड़कों की तामीर और खड्डों के भरने की हिदायत दी। इस दौरे में कारपोरेटर्स व नुमाइंदा कारपोरेटरों मोहम्मद नसीरुद्दीन, अजीज खां पठान, वजी भाई, फरहान अहमद और राजेंद्र यादव वगैरह भी इनके हमरा थे। ईद उल जुहा के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की आरिजी मंडियां कायम होना शुरू हो गई हैं। बकरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार कल पूरे शबाब पर आ जाएगा। कुर्बानी के लिए तेलंगाना का पोटला सबसे ज्यादा पसंदीदा जानवर समझा जाता है। पुलिस की जानिब से सख्ती बरते जाने के नतीजे में इस बार जानवर महंगा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीद शेख है और ये जो बकरा है शादनगर के आगे का है, लाल पहाड़ पे। और सबसे ख़ास बात यह है कि बकरे का ये फार्म का बकरा नहीं है, जंगल का बकरा है। और तकरीबन हम लोग इसको एक 4-5 दिन से यहाँ पर लेके आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से बहुत कम रेट है, 7,000 से लेके 8, 9, 10 तक क्या है इसमें। और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बकरा तो आ चुका है। और ये जो बकरा है ये अपना तेलंगाना का है और ख़ास बात यह है कि फार्म में नहीं पला, ये जंगल का बकरा है। और ये इसका जो गोश्त रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जायक़ेदार रहेगा और ये बहुत अच्छा बकरा है।
नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज जमा ऑफिस नामपल्ली में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए मंजूरा 42 चेक्स मुस्तकीन में तकसीम किए। बेशतर इस्तेफादा कुरिंदों का ताल्लुक सुबानपुरा आगापुरे से था। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कायदीन भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जारी मानसून के दौरान दोनों अजला आदिलाबाद और कुमारा भीम आसिफाबाद में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से किसानों में खुशी की लहर पाई जाती है। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक कुमारा भीम आसिफाबाद में 786 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 34% जायद है। आदिलाबाद में 763 मिलीमीटर बारिश के साथ 22% का इजाफा देखा गया। कुमारा भीम आसिफाबाद के वांगखड़ी मंडल में 870 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले निर्मल में 21% जायद बारिश हुई है। तहम मंचियाल में 12% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने कहा कि कोलकाता में मुल्क का पहला अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन हुबली नदी से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इंडियन रेलवे की तरक्की का यह सबसे बड़ा सबूत है। इस ट्रेन सर्विस के आगाज से कोलकाता के शहरियों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ मुल्क के अवाम को इस पर नाज करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने बताया कि 16 किलोमीटर तवील कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट सॉल्ट सेक्टर 5 को हावड़ा से जोड़ा जाएगा। पहले मरहले के तौर पर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और सॉल्ट लेक स्टेडियम के दरमियान ये ट्रेन सर्विस का आगाज होगा। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने पुलिस पर ईद उल अजहा से कबल शहर में जानवरों को लाने में रुकावटें खड़ा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जिन जानवरों को कानून के तहत लाने और काटने की इजाजत है उस पर भी ट्रांसपोर्टर्स को हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात है कि पुलिस एक तरफ कहती है कि वेटरनरी डॉक्टरों के सर्टिफिकेट कबूल किए जाएंगे, लेकिन जब सर्टिफिकेट्स बताए जाते हैं तो जानवरों के बीमार होने का उज़र बताते हुए उन्हें वापस कर दिया जाता है। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि हुकूमत को कोई वाज़ेह गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। जैसा ही ईद उल अजहा का मौका आया है, शहर में ख़ास तौर में हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकोंडा के तमाम पुलिस के अहदेदार जो है एकदम से एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होते हुए पूरे सिटी के आउटस्कर्ट्स में जो एंट्री पॉइंट्स है सिटी के पूरों में पुलिस पिकेट्स डाल के नाकाबंदी करके जानवरों जो बकरीद के लिए यानी जो जानवर लेकर आ रहे हैं मुस्लिम ताजिर और इंडिविजुअल लोग भी, कई इंडिविजुअल लोग जाके इब्राहिमपट्टनम से, नारसंगी से जानवर लेके आ रहे हैं और कई जानवर जो है आपके महाराष्ट्र से, कर्नाटका से जो जानवर आ रहा है पूरों को रोक रहे हैं। बाज़ाब्ता रोक के जो है हर जहाँ पर पुलिस पोस्ट पे एक अलग कानून चल रहा है। वो अलग कानून क्या चल रहा पुलिस पोस्ट पे, कहीं पर ये बोल रहे हैं कि जानवर का मेडिकल सर्टिफिकेट अगर है तो कहाँ से खरीदे, जहाँ से खरीदे बाज़ाब्ता उसका खरीदे से भी लेटर है। अब ये बोल रहे हैं कि बाज़ जगह ये बोल रहे हैं कि आप सेहतमंद जानवर काट नहीं सकते। अब बाज़ जगह ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो है बीमार जानवर को कटिंग के लिए इजाज़त है। दूसरे मुकाम पर नाके पे ये बोल रहे हैं कि बीमार जानवर नहीं काट सकते आप, सिर्फ सेहतमंद जानवर काटना। तो ये जो है कोई क्लैरिटी नहीं है।
इसके अंदर, और ये हर साल हो रहा। हर साल जो है हर चेक पोस्ट पे, हर पुलिस स्टेशन पे पुलिस के आला अहदेदार जो है ये बोल रहे हैं कि कम से कम डेली 20-25 एक नाके पे, एक आउटपोस्ट पे जानवर को खींच के जो है उसको गौशाला को भेज रहे हैं, और उल्टा पुलिस केस बुक कर रहे हैं। अब आप देखिए उसके अंदर गाय नहीं है लाने में, पूरे बैल है, और बैल लेके भी आ रहे हैं तो उनको भी हरासमेंट किया जा रहा है। मुसलसिल कई सालों से हम जो है तेलंगाना हुकूमत को, तेलंगाना पुलिस को ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है बैल काटना पाबंदी नहीं है, लेकिन पुलिस को किसने इख्तियार दिया? पहली ये मेरा सवाल है कि पुलिस को जानवर के ट्रांसपोर्टेशन पे क्या है? अच्छा, कभी ये बोल रहे हैं कि गौ रक्षा समिति वाले पुलिस वालों के साथ में रोक रहे हैं, बाज़ाफ्ता गेरू कलर के टोपियां पहन के आरएसएस के बाज़ाफ्ता झंडे लेके लोगों को मार रहे हैं, रोक रहे हैं उनको। बाज़ मुकामात पे क्या कर रहे हैं, पशु रक्षा समिति वाले बोल के आ रहे हैं, यानी ऑटो है, ऑटो ट्रॉली में अगर जानवर को लेके आ रहे हैं, 2 बैल है, 3 बैल है, नहीं इतने ज्यादा आप नहीं ला सकते बोल के। अरे इन्हों कौन अथॉरिटी है ये बताइए? क्या तेलंगाना में कोई कानून चल रहा है या नहीं चल रहा बताइए आप? नहीं, अब क्या हम रिटेलिएशन करना क्या बताइए आप? जहां पर भी जानवर को रोके हम भी जवाब देना क्या बताइए? क्या पुलिस ये चाह रही कि मुसलमान जवाब देने पे मजबूर होना क्या बतलाइए? क्या पुलिस का जहन, क्या हुकूमत ये मालूम कि हम क्या कमजोर है समझ रहे हैं क्या बतलाइए आप? हाल ही में जो है महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब, एक बयान दिए। क्या बयान दिए कि प्रोहिबिटेड जानवर मत काटो, आप बैल काट सकते हो, सब कर सकते। महमूद अली साहब का जो बयान है वो बयान खुद एक गलत है कि अब आप ऐसा मिसाल दे रहे हैं महमूद अली साहब कि मैं महमूद अली साहब को मिसाल दे रहा हूं कि भाई आपका दूध का कारोबार है, आप पानी मत मिलाओ बोल रहा हूं मैं, बगैर पानी मिलाए दूध का कारोबार करो बोल रहा हूं मैं आपको। तो आप बतलाइए क्या आप पानी मिला के दूध का कारोबार करें क्या बतलाइए आप मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं कि आप सूद मत खाओ आप बोल रहे हैं, तो क्या मुसलमान सूद खाता क्या बतलाइए आप बहैसियत होम मिनिस्टर आपका काम है, जबकि आप पिछले 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अल्लाह ताला आपको फिर से एक बार मौका दिया, आज आप होम मिनिस्टर है। आप चाहिए था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तीनों कमिश्नर्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस रच्चाकोंडा, पूरों की मीटिंग, आईजी इंटेलिजेंस, बल्दिया कमिश्नर और खुरैश बिरादरी की, ये पूरों को बुला के मीटिंग लेके पाबंद करना। अगर कोई जानवर को रोकेगा आने से तो मैं उसके खिलाफ में एक्शन लूंगा। आप में दम नहीं है ये बोलने का, आप मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो बोल के। वोट लेने के वास्ते आते आप मुसलमानों के ने जाके बयानात करते मुस्लिम कम्युनिटी में जाके। अच्छा, आप जितने तंजीमा जो टीआरएस को मदद करे इलेक्शन में, ये सब कहाँ बोलिए? ये पूरे जाके बिल में अंदर छुप गए, कोई नहीं आ रहा बाहर आके। आज मुसलमानों के साथ जबरदस्ती हो रही। कल परसों रात भर जो है इब्राहिमपट्टनम से जितने भी लोग जानवर आए एलबी नगर पे, पुलिस वाले कुत्ते पने कर रहे हैं वहां पर, वो पकड़ रहे, मार रहे, रॉडी शूटरों के वैसा फोटो ले रहे, लोगों को अरेस्ट करके रिमांड कर दे रहे। एलबी नगर पुलिस स्टेशन क्या है बतलाइए आप? होम मिनिस्टर जाओ, जाके रात में निकलो, आप रात में निकल के पूरे आउटस्कर्ट में फिरो। आप क्यों घर में एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं? आप एक बहैसियत मुसलमान भी है, आप स्टेट के होम मिनिस्टर है, क्या जुल्म है भाई ये बतलाइए? कौन है, कोई पुरसाने हल है क्या बतलाइए? मजलिस की क़ियादत अपनी जगह मसरूफ, आप अपनी जगह मसरूफ, जितने उलमा मशाइखीन तंजीमा टीआरएस को तायद करे अपनी जगह मसरूफ। ये बुरे वक्त में कौन साथ देगा बतलाइए आप? रात रात भर टेलीफोन आ रही, एलबी नगर से फोन आ रही, नारसंगी से फोन आ रही, आपके जू के आगे बहादुरपुरे से चेक पोस्ट से फोन आ रही, रोज गिरफ्तार करते जा रहे। 50-50, 60-60 हजार ताजिरों को अलग परेशान कर रहे हैं। अब हर गली में, अब जैसा कोई 1-4 बच्चे मिलके जाते, जाके वो लोग जानवर लेके आते, सस्ता मिलता बोल के। मैं जो लोग जानवर ला रहे हैं उनको भी मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आप जो है वहां जाके जो खरीदारी कर रहे हैं इब्राहिमपट्टनम मार्केट में, या आप जाके नारसंगी में, या आप जाके गंडीपेट के आगे जो खरीदारी कर रहे हैं उसको बोलो हम एक ही शर्त पे खरीदते, तुम चेक पोस्ट पार करके हैदराबाद में लाके दियो बोलो आप। तो जहां से जानवर खरीद रहे हैं वहां से ऑटो का नंबर, ट्राली के नंबर के साथ पुलिस को और ये आरएसएस वालों की इंफॉर्मेशन हो रही। अब आप जाके देखिए जो एलबी नगर में गौशाला है वहां पर जो जानवरों को डाल दिए अंदर, वहां पर जानवरों को खाना नहीं दे रहे। जानवर गिरफ्तार करने के बाद में एक दिन के कहते गौशाला में 600 रुपए बनना कहते, वहां पर जानवर छुड़ाने के वास्ते एक दिन के 600 रुपए, कोर्ट में जाके बेल लेना कहते,
केस बुक होता, 3 साल कोर्ट को फिरना, क्या इस वास्ते मुसलमान टीआरएस को वोट दिए? क्या इस वास्ते ये उलमा मशाइखीन अपील करे टीआरएस को वोट दियो? बल्कि बतलाइए आप कहाँ हो रहा क्या आखिर? क्या आप मजबूर कर रहे हैं क्या? बोलिए आप मुसलमानों को हर चेक पोस्ट पे निकल के जवाब देने के लिए, बोलिए आप क्या कमजोर समझ रहे हैं हैदराबाद के मुसलमानों को? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।